In question number 71, two particles A and B having opposite charges 2 into 10 raised to minus 6 coulomb and minus 2 microcoulomb are placed at a separation of 1 centimeter. So we have two charges. We have 2.0 microcoulomb and 2 microcoulomb, which are kept at a distance of 1 centimeter apart. Write down the electric dipole moment of this pair. So for the first part, electric dipole moment, the magnitude will be charge on any of the particle. तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 माइक्रो into the distance between them 0.01 in meters. So your answer will be 2 into 10 raised to power minus 8 coulomb meter. So this is the answer of first part. In the second part, calculate the electric field at a point on the axis of the dipole 1 centimeter away. So in the second part, we have to find the electric field at 1 centimeter away along the axis. Okay, in the first part, we should also tell the direction. Its direction will be from negative to the positive charge, and direction is from negative to positive charge. Okay, so in the second part, we have to find the electric field at point P, which is on the axis, and the distance is 1 centimeter. So when the distance of the point where we want to find the electric field, अगर वो comparable है to the distance of to the length of the dipole, उस केस में we cannot use the approximate formulas जो हम derivation में derive करते हैं, उन फॉर्मूला को यूज़ नहीं करना है. इस केस में आपको अपने ट्रिवियल अप्रोच से नॉर्मली जैसे आप निकालते हैं, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देन यू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओगे, दोनों को वेक्टरली ऐड करोगे, जो आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर. तो यहाँ पर आपने डायरेक्टली आपके जो अप्रॉक्सीमेट फार्मूलाज हैं उनको नहीं लगाना है. तो यहाँ पर P पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, सो दिस पॉजिटिव चार्ज इज क्लोज, तो इसकी फील्ड ज़्यादा होगी. So this is the electric field due to plus and this is the electric field due to the negative charge. और दोनों की डायरेक्शन अगर देखें सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो आप इनको एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो जो E प्लस है, अगर मैग्नीट्यूड इसका देखें, सो दैट विल बी K इंटू 2 माइक्रो डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस. अब देखो यहाँ से लेकर सेंटर से अगर बात कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर, तो इस चार्ज से कितना हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर है और ये मिड पॉइंट है, तो ये हो गया आपका 0.5 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर. तो 0.5 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 2 स्क्वायर, ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज. सिमिलरली जो E माइनस होगा दैट विल बी K 2 माइक्रो अपॉन, in this case the distance will be 1 plus 0.5, 1.5 into 10 raised to power minus 2 square. अब हमको देखना है मैग्नीट्यूड, दैट विल बी E प्लस माइनस E माइनस, सो इट विल बी K 2 माइक्रो 1 अपॉन 0.25 इंटू 10 raised to power minus 4 माइनस 1 अपॉन 2.25 इंटू 10 raised to power minus 4. अब यहाँ से जो कॉमन आता है उसको ले लेते हैं, तो 0.25 आपका कॉमन आ रहा है और आपका 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4 कॉमन आ रहा है. तो यहाँ पर 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6, 0.25 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4 कॉमन ले लिया है, तो 1 माइनस, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 9, दैट्स इट. सो इट विल बी 9 इंटू 2 अपॉन 0.25 इंटू, यहाँ पर आपका 8 अपॉन 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 आ गया और यहाँ पर एक 8 आ गया, एंड 10 रेज़्ड पर 9 माइनस 6 प्लस 4, सो 9 से 9 कैंसिल, और ये आपको मिलेगा 0.25 और ये आपका 64 हो जाएगा. 0.25 ओके 4 8 64
into 10 raised to power, this will be 7. Okay, so it comes out to be 6.4 into 10 raised to power 8 Newton per Coulomb. So this is the electric field at point P on the axis. In C part, we have to calculate the electric field at a point on the perpendicular bisector of the dipole and 1 meter away from the center. So here, so if this is your minus 2 microcoulomb and this is your 2 microcoulomb, and the point where we want to find the field is 1 meter away. Okay, so at this point Q we want to find the field 1 meter away. अब यहाँ पे जो 1 मीटर है that is like quite big in comparison to the length of the dipole, तो यहाँ पर we can use the approximation, और जो electric field होती है in this case that will be, the magnitude of that will be K, and P is your dipole moment divided by R Q. Okay, so now we can apply this approximate formula because this distance is huge in comparison to this distance of the dipole. तो यहाँ पे डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देते हैं, तो K आपका हो जाएगा, हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, योर डाइपोल इज इन दिस डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑपोजिट, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, एंड इट विल बी 9 इंटू 10 रेज़्ड पावर 9. P हमने निकाला है ऑलरेडी, दैट इज 2 इंटू 10 रेज़्ड पावर -8 divided by R cube. R is the distance from the center of the dipole to the point where we want to find the field. So ये distance आपका 1 मीटर है, so 1 cube, so it comes out to be 180 Newton per Coulomb. So this is the answer of part C. In question number 72, 3 charges are arranged on the vertices of an equilateral triangle as shown in the figure. Find the dipole moment of the combination. तो आपको यहाँ पर -q गिवन है, यहाँ पर -q गिवन है और यहाँ पर 2q गिवन है. सो इन क्वेश्चन नंबर 72, सो देयर इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पर आपका -q है और यहाँ पर आपका +q है, सॉरी यहाँ पर भी आपका -q है. अब इस 2q को हमने निकालना है व्हाट इज़ द डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन. अब यहाँ पे -q है, तो अगर मुझे डाइपोल बनाना है तो यहाँ पर एक q होना चाहिए, और यहाँ पर अगर -q है तो मुझे डाइपोल बनाना है तो यहाँ पर एक q होना चाहिए. तो वी कैन स्प्लिट दिस 2q इनटू 2 पार्ट्स, एक q में तोड़ सकते हैं इसको. तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से दिखा सकता हूँ, दिस इज़ q एंड दिस इज़ q. ओके, और ये एक डाइपोल बन गया है और एक डाइपोल ये बन गया है. तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर दिस डाइपोल इज़ इन दिस डायरेक्शन, और अगर यहाँ पर देखें तो दिस डाइपोल इज़ इन दिस डायरेक्शन, and this angle is 60 degree. Now there are two vectors which are inclined at 60 degree and they have equal magnitude. अब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग लाई करेगा. सो जो हमारा रिजल्टेंट होगा दैट लाई अलॉन्ग दिस लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मान लो कि ये है P डैश, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा that will be 2p cos 60 by 2. Okay, so it comes out to be 2p cos 30, and cos 30 is √3 by 2, so it comes out to be √3 into p, and p here will be q times the length. Say the length of this triangle is A, so P will be QA, so it comes out to be √3 QA. So this is the magnitude of the dipole moment, and it makes an angle of 30 degree with the horizontal. Angle of 30 degree with the horizontal. ओके,
या आप कह सकते हो अगर ये आपकी एक्स एक्सिस है, या आपकी वाई एक्स, ये आपकी माइनस एक्स एक्सिस है, सो इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द माइनस एक्स एक्सिस. So this is the answer of question number 72. In question number 73, find the magnitude of the electric field at the point P in the configuration shown in the figure. D is very very greater than A. Take 2QA equals to P. तो यहाँ पर हमें तीन कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, यहाँ पर केवल एक पॉइंट चार्ज गिवन है, यहाँ पर आपको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, बेसिकली एक डाइपोल गिवन है, और यहाँ पर आपको नेगेटिव, पॉजिटिव और एक पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है डाइपोल का और एक पॉइंट चार्ज का, और इन तीनों केसेस में हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. अब हमें पता है कि जो पॉइंट चार्ज होता है उसके कारण जो फील्ड होती है दैट इज़ अवे फ्रॉम द चार्ज. तो इस केस में वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फील्ड होगी एट पी. और अगर आपका एक डाइपोल है और आप उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर फील्ड निकाल रहे हैं, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज़ ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट. तो इस डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेफ्ट डायरेक्शन में. और इस केस में आप देखेंगे तो इस चार्ज के कारण वर्टिकल डायरेक्शन में, इस डाइपोल के कारण लेफ्ट डायरेक्शन में है. तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर लेंगे तो समवेयर यहाँ पर इंक्लाइंड होगा कुछ. तो ये तीनों चीज़ें हमें निकालनी है. तो 73 में फॉर द पार्ट ए जो आपका डायग्राम है, इन दिस केस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा will be QK upon D square upward direction. And in B part माइनस क्यू प्लस क्यू एक डाइपोल बन रहा है, और हमें पता है कि ये जो यहाँ पर जो D है दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन योर A. तो इसका मतलब जो लेंथ है हमारे डाइपोल की 2A है. तो D अगर उससे बहुत बड़ा है, इन दैट केस वी कैन अप्लाई अवर अप्रॉक्सीमेट फार्मूला. तो इस केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट P दैट विल बी K डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस दैट इज़ D क्यूब. सो ये वाला फार्मूला आप लगा सकते हो. और यहाँ पर जो P है आपका वो 2QA के बराबर है, K 2QA अपॉन D क्यूब. एंड इन C पार्ट यहाँ पर मैं डायग्राम दिखा सकता हूँ आपको. सो दिस इज़ योर माइनस क्यू, दिस इज़ प्लस क्यू, और उनके मिड पॉइंट पर आपका एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है. और यहाँ पर अगर हम फील्ड निकालते हैं, सो ड्यू टू दिस फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, एंड ड्यू टू दिस डाइपोल फील्ड विल बी ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, समथिंग लाइक दिस. मैं इनको अलग अलग नाम दे देता हूँ. सो इट विल बी E1P, इसको लिख देता हूँ E2P. सो दिस इज़ योर E1P एंड दिस इज़ योर E2P, and the resultant will be like this. So this is the resultant field जो हमें निकालना है. तो resultant जो होगा आपका, इसको मैं E बोल देता हूँ. The resultant is E. So vectors are perpendicular to each other. तो resultant will be square root of E1P का स्क्वायर प्लस E2P का स्क्वायर. ये हो जाएगा. अब यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यूज़. सो ये आपका आएगा Q K अपॉन D स्क्वायर प्लस योर K 2QA अपॉन D क्यूब स्क्वायर. ओके. अब यहाँ पे जो आपका कॉमन है उसको निकाल लेते हैं. तो यहाँ पर D स्क्वायर यहाँ से और D स्क्वायर यहाँ से हम ले सकते हैं कॉमन, तो ये बाहर जाकर हो जाएगा 1/D, और आपको मिलेगा Q स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर Q स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर. ओके. यहाँ से Q और K को भी हम कॉमन ले सकते हैं. तो ये आपका आ जाएगा Q K, और यहाँ से D को एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर D स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और एक D बाहर आ जाएगा. सो इट विल बी D, यहाँ पे D स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ पे D क्यूब हो जाएगा, और ये आपका आएगा Q स्क्वायर K स्क्वायर. तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आएगा आपका D स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर का स्क्वायर रूट.
ओके। और इसको अगर हमें p के टर्म्स में लिखना है तो q को हमें अंदर ही लेकर जाना पड़ेगा, तो ये आपको मिलेगा k/d³। तो यहाँ पर q² d² हो जाएगा, दैट विल बी q² d², और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2aq होल स्क्वायर। सो दिस 2aq होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, p²। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 d³, और ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ q² d² प्लस p²। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 73। In question number 74, two particles carrying charges minus q and plus q are and having equal masses m each are fixed at the ends of a light rod of length a to form a dipole, and the rod is clamped at an end and is placed in a uniform electric field E with the axis of the dipole along the electric field. The rod is slightly tilted and then released. Neglecting gravity, find the time period of the small oscillation. So in this case, at a point, some point आपका जो डाइपोल है दैट इज क्लैम्प्ड, और ये कुछ इस तरह से क्लैम्प्ड है, एक यहाँ पर चार्ज है, एक यहाँ पर चार्ज है, और इस पॉइंट के अबाउट आपने इसको क्लैम्प कर दिया। सो हेयर वी हैव माइनस क्यू, हेयर वी हैव प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई एंड इट इज़ टूवर्ड्स राइट मान लेते हैं, तो आपका जो डाइपोल होगा इसी डायरेक्शन में अलाइंड होगा। तो इफ़ यू स्लाइटली डिस्प्लेस, इन दोनों का जो मास है वो भी ऑल्सो वो गिवन है हमें, स्मॉल m और स्मॉल m मास गिवन है, एंड दिस रॉड इज लाइट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो गिवन, दैट इज a। अब क्या होगा, हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं, तो जैसे ही मैं इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करूँगा तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो टॉर्क आपका किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, तो चाहे मैं सेंटर के यहाँ पर आपका P क्रॉस E लगा दोगे तो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर फोर्स लगेगी आपकी QE और उसका यहाँ पर इसके अबाउट टॉर्क निकाल दो, तो वहाँ से भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। So it will be, your P will be QA। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ उसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, सो इट विल बी योर QA इंटू E इंटू दिस एंगल थीटा which the dipole makes with the electric field. So the angle between the electric field and the dipole, इस केस में डाइपोल आपका इसके अलॉन्ग अलाइन हो चुका है, विल बी थीटा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो साइन थीटा। ओके, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। अब हमने इसको बहुत ही स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो ये जो थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। ओके, in that case you can write sin theta nearly equals to theta. So your restoring torque will be minus QA E theta. ओके, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एंड और जो टॉर्क होता है उसको आप लिख सकते हो आई अल्फा, वेयर आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डाइपोल अबाउट दिस हिंज्ड पॉइंट। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, इस चार्ज का तो यहाँ पर जीरो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट इज जीरो। इस चार्ज का यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मास टाइम्स द डिस्टेंस का स्क्वायर ma²। तो आई टाइम्स अल्फा आर, वे आर इज रिस्टोरिंग अल्फा बोल रहा हूँ मैं, माइनस QAE थीटा। सो इट विल बी ma² अल्फा आर इक्वल्स टू माइनस QAE थीटा। सो ए से ए कैंसिल, तो आपको मिलेगा अल्फा आर इज इक्वल्स टू माइनस QE अपॉन ma थीटा। और ये जो बेसिकली बन रहा है, इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ एन SHM, रोटेशनल SHM। तो इसको हम ये अगर कंपेयर करें SHM में, आपका रोटेशनल SHM, इसमें आपका होता है जो अल्फा होता है दैट इज़ माइनस ω² थीटा। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, योर ω² विल बी QE अपॉन ma। सो ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द ऑसिलेशन, सॉरी,
और ये SHM की इक्वेशन है, तो वो SHM की जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है दैट विल बी QE/MA, and the time period of the oscillation will be 2 pi by omega, and from here we can say time period is 2 pi square root of MA upon QE. So this is the answer of question number 74. In question number 75, assume that each atom in a copper wire contributes one free electron. Estimate the number of free electrons in a copper wire having a mass of 6.4 grams, taking the atomic weight of the copper to be 64 grams per mole. So in this question we have to estimate the number of free electrons in the copper of mass 6.4 gram. तो हमें कॉपर का जो मास गिवन है दैट इज 6.4 ग्राम्स है, एंड वी हैव गिवन दैट द मोलर मास इज ऑल्सो गिवन. मोलर मास जो है दैट इज 64 ग्राम्स. तो मतलब 64 ग्राम्स में आपके एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे कॉपर के. सो वी कैन से 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कॉपर इन 64 ग्राम्स. तो अगर हम बात करें 6.4 ग्राम्स में तो उसमें 1/10 होंगे इसके. सो इन 6.4 ग्राम्स there are 6.022 into 10⁻23 divided by 10. इतने एटम्स होंगे कॉपर के, और हमें गिवन है कि ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स वन फ्री इलेक्ट्रॉन. सो इसका मतलब अगर इतने एटम्स हैं तो इतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे, एंड वी हैव टू एस्टिमेट द नंबर. तो व्हेन एवर वी हैव टू एस्टिमेट, तो आप ये जो डेसिमल्स में चीज़ें उनको हटा सकते हो, तो यू कैन राउंड ऑफ इन टर्म्स ऑफ इंटीजर. तो ये आपका हो जाएगा 6. सो इट विल बी एस्टिमेशन विल बी 6 into 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर देगा. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 75. In case you have any doubt regarding these questions, you can ask in the comment section. Thank you.